morning, students. In today's class, we are going to discuss about the line spectrum of hydrogen atom. In the previous class, we had discussed about what do you mean by atomic spectrum, and in that we had seen that there are two types of atomic spectrum. First is emission and second one is absorption. And emission spectrum, in this we get some lines, we get the bright lines. So here we are going to discuss the emission spectrum or the line spectrum of hydrogen atom. Now what happens when in the sample of hydrogen gas an electric discharge is passed at low pressure, a bluish colored light is observed, and when a ray of this light is passed through the prism, a spectrum is observed where few bright lines were seen. Okay, and these lines, they were lying in definite wavelengths and in the regions of ultraviolet, visible and infrared, and these different lines, they are forming a series. They are forming a definite series, and these series we are going to discuss today. Okay, so why the different lines are obtained? The question comes to our mind कि why we are getting these different lines. So first we will understand why we are getting these different lines, what do we mean by different lines, and then we will study these different lines. Now see what happens. We know that in a hydrogen atom only one electron is present, but in a sample of hydrogen gas there are infinite number of hydrogen atoms, so many number of hydrogen atoms. Okay, now each hydrogen atom, when single electron is present in it, when it gets excited, suppose if we talk about the energy levels, I had drawn the energy levels. N is equals to 1, N is equals to 2, 3, 4, 5, 6, 7, and it can be any up to infinite. This is infinite. So we can write the name also. It can be written as K shell, L, M, N, O, P, Q. Okay, likewise. Now what happens when the single electron, suppose it gets excited to fifth, fifth energy level. Now when it reaches to high energy level, then it becomes unstable and it remains there for a very small period of time, that is 10 to the power minus 6 to 10 to the power minus 8 seconds. So that is a very small period of time, and it jumps back. It jumps back to the ground state. Okay, when it is coming back, it is emitting the radiations. अब हम देखते हैं कि when it is suppose in one of the atom it gets excited to the fifth shell. फर्स्ट शेल से वो एक्साइट होकर कहाँ पहुंच गया है? फिफ्थ शेल में. सो मे बी इट इज पॉसिबल कि फिफ्थ शेल से वो डायरेक्टली जंप करके कहाँ आ जाए? फर्स्ट शेल के अंदर. मे बी पॉसिबल है कि फिफ्थ शेल से वो जंप करके आए सेकंड में, और फिर सेकंड से वो आके यहाँ पे आ जाए वन में. मे बी पॉसिबल कि फिफ्थ वाले शेल से वो पहले कहाँ पे आ जाए? आपका थर्ड के अंदर. देखो यहाँ फिफ्थ से पहले आ जाए थर्ड में, और फिर थर्ड से वो आ जाए सेकंड के अंदर, और फिर सेकंड से आ जाए वन में. सो व्हाट डू आई मीन टू से दैट when it is coming back from excited state to the ground state, it can adopt various routes. बहुत सारे transitions possible है, and in doing so it emits different lines. Okay, and this is constituting the spectrum. So here we are saying it is giving out different sets of lines, and they are categorized into different series. So here I written these lines are grouped into different series, and they are lying in ultraviolet, then visible and the infrared regions. Okay, so here we have discussed why we are getting these lines, because they are adopting different routes to come to the ground state. Fine. Now we will see what are these different lines. See, N is equals to 1. If from any of the excited state they are coming to the ground state, then they constitute a series that is called as Lyman series. So I just write down here, they are constituting the Lyman series, and it lies in the ultraviolet region. Okay, see, N2 is equals to 2 and it is coming to 1. N2 is equals to 3, it is coming to 1. अगर थर्ड फोर्थ शेल से आ रहा है वन में, फिफ्थ शेल से आ रहा है वन में, सिक्स से आ रहा है वन में, फ्रॉम एनी ऑफ द एक्साइटेड स्टेट इफ इलेक्ट्रॉन जम्प्स टू द N1 shell, then it is constituting a series that is called as Lyman. Similarly, the next one it is Balmer. Balmer series क्या होगी बच्चों? Balmer series में if electrons from any of the excited state it is coming in the second shell,
दैट इज n इज इक्वल्स टू 2. अब देखो यहाँ पे थर्ड शेल से वो आ रहा है 2 में, फोर्थ शेल से भी आ रहा है 2 में, फिफ्थ शेल से भी आ रहा है सेकेंड में, देन सिक्स्थ शेल से भी आ रहा है सेकेंड में, सेवेंथ से भी आ रहा है सेकेंड में, इनफाइनाइट से भी आ रहा है वो सेकेंड में. सो इफ n1 it is the 2 that constitute a series, that is the Balmer series, and it lies in the visible region. Okay, similarly when it is coming to the third, then it constitute partial and it lies in the infrared. Now if it is n is equals to 4, then it forms bracket series and it also lies in infrared. Then it cause when it is coming into n is equals to 5, then it is constituting, see इसको learn करने का तरीका क्या है, low BP BP. So here what we are going to write, bracket Pfund. Okay, and this is also lying in the infrared. Now when we are seeing here Pfund means हमारा n is equals to 5, n1 क्या है हमारा 5. So we will mention them here. First one it is Lyman. Students, the names are given according to their discoverers, the scientists who has discovered these lines, those who have studied these lines, according to them the series have been named. Suppose these series, the Lyman series, they are discovered by Lyman, so the name is given on the name of the scientist. First is Lyman, then Balmer, then bracket, it is Paschen, then bracket, then Pfund, and students last one is Humphrey. Humphrey, when n, I am just writing the value of n1. n1 means the first series where they are coming from all the excited states. So Lyman में n1 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 1 और n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 से भी आ रहा है वो 1 में 3 4 it can be any. Okay, बामर के अंदर हमारी n1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, पार्शियल में 3, ब्रैकेट में 4, Pfund में 5 एंड Humphrey में it will be 6. ठीक है. Now बामर में it can come from 3 4 5 6 any. So here I can write 5 also, 6 also, 7 and so many. Here from 4th if it is coming to 3rd, from 5th if it is coming to 3rd, from 6th if it is coming to 3rd, then it will constitute partial series. In bracket n2 can be 5 6 7. स्टूडेंट्स अगर मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है सो इट इज अंडरस्टूड कि अपर सीरीज कुछ भी हो सकती है, बट यहाँ जो n1 है वो लिमिट रहेगा. n1 लाइमन के लिए 1 होगा, बामर के लिए 2 होगा, पार्शियन के लिए 3 है, ब्रैकेट के लिए हमारा 4 है, Pfund के लिए हमारा 5 है एंड Humphrey के लिए हमारा 6 है. ओके, एंड n2 कैन बी हियर 6 7. फाइन. And here Humphrey के लिए it will be from S7. So we can say here this last one it is the Humphrey and it is coming in the far infrared. Okay, and here Humphrey में क्या है n1 it is the 6 and from 7 it can come or from the infinite it can come. So here we are constituting this different series and we will be doing the numericals also, and to find out the number of lines in the particular series there is a formula students to find out. You can mention here to find out number of lines. अगर हमें लाइमन की सीरीज की लाइंस निकालनी है तो फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे n2 minus 1. I will tell you afterwards जब हम numericals करेंगे, because some of you had demanded ma'am please just do some numericals also so that the clarity of the concept will be more. So in this class I will be taking some numericals also. So if Lyman series के लिए we have to find out the number of lines, we will use the formula n2 minus 1. So whatever the n2 it is there, suppose third के लिए निकालना हमें तो 3 minus 1. Here it will be n2 minus 2.
N2 minus 3, N2 minus 4, N2 minus 5, N2 minus 6. Okay, this was all about the different series. Now, if you have to find out the total number of lines, how you will find out? There's a formula. Note it down. Total number of lines. Total number of lines अभी मैं बताऊंगी क्या निकालना है इसके अंदर. फॉर्मूला नोट कर लो. That is del n plus 1 upon 2. ठीक है. अच्छा, del n क्या है? सपोज मुझे देखना है कि मेरा 6th जो शेल है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहुंच गया और इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ रहा है मेरा 1 में. So how many spectral lines I will be getting? So 6 minus 1, what it will be? 5. So del n क्या है? दोनों का डिफरेंस, शेल्स का डिफरेंस. 6 minus 1 5, 5 plus 1 6. So 6 into 5 30 upon 2, and then it will be equals to 15. So 15 spectral lines will be observed. We will take the questions and make it clear. Okay. Now the next one. First thing though, how you can find out the different series of lines. What about the different series of lines? Next one is the total number of lines. And the third one, the third topic that we have to discuss over here, Rydberg formula. Students, Rydberg was a scientist. He gave a formula to find out the wave number for different single electronic species. जैसे हाइड्रोजन ले लिया आपने एंड सपोज He+1 लिया. He+1 के साथ सपोज मैं लिख देती हूँ. I just write down for single electron species. Single electron, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है. If you are talking about He+, that is also having 1 electron. लिथियम, अगर आप लिख रहे हो लिथियम +2, अगर आप लिख रहे हो बेरिलियम +3, बेरिलियम 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन यूज करिए, इट इज सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज. सो इन सभी सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए हाउ यू विल कैलकुलेट द वेव नंबर इज इक्वल्स टू, वेव नंबर हमें पता होता है, इट इज 1 upon lambda and the formula given was RH. This is the Rydberg constant and Z upon 1 N1 square minus 1 upon N2 square. ठीक है. N1 हमने यहाँ पे देखा कहाँ पे वो जंप करके आ रहा है, N2 कहाँ से आ रहा है. ओके, अब इसके भी हम क्वेश्चंस करेंगे तो ये फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा. अब Rydberg कांस्टेंट, RH को हम क्या बोलते हैं? Rydberg कांस्टेंट. और इसकी वैल्यू क्या होती है? RH is equals to Rydberg constant and its value is 109,678 सेंटीमीटर इनवर्स. बेटा यहाँ पे कई बार 678 को राउंड ऑफ करके 700 ले लेते हैं, 700. सो इट कैन आल्सो बी 109,700 सेंटीमीटर इनवर्स. इन मैनी बुक्स यू विल फाइंड. ओके, अब कैलकुलेशन इजी हो उसके लिए हम एक और वैल्यू ले लेते हैं, 1 upon RH. इसकी वैल्यू होती है 912 एंगस्ट्रॉम और अगर नैनोमीटर में लिखें 91.2 नैनोमीटर. ठीक है. ये तो कुछ फॉर्मूलाज हुए जिसके हम न्यूमेरिकल्स करेंगे. एक चीज और नोट कर लो यहाँ पे, इफ यू हैव टू कैलकुलेट द फर्स्ट लाइन, इफ यू हैव टू कैलकुलेट द फर्स्ट लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम, दैट मीन्स द लाइन ऑफ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ. यहाँ पे आप लिख लो द लाइन ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ. ठीक है. लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मीन्स यहाँ पे हम N2 कैसे कैलकुलेट करेंगे? N2 is equals to N1 plus 1. N1 plus 1. अब सपोज हम लाइमन की बात करते हैं. ठीक है. मुझे लाइमन के लिए फर्स्ट लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम का आपको वेवलेंथ निकालना है. ठीक है. अब हम क्या करेंगे? लाइमन के लिए मुझे पता है N1 ऑलवेज इट विल बी 1. सो आई जस्ट राइट डाउन N1 क्या हो जाएगा मेरा 1 एंड N2 मेरा क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे? N1 plus 1, that is 1 plus 1, it will be 2. So I will be putting the value of N1 1 and N2 2 in this formula and I will be able to calculate either the wave number or the wavelength by this. So अगर आपको 1 by wavelength की वैल्यू निकालनी है तो what you will write? It will be RH. अगर हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो Z की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 and here 1 by N1 हमारा क्या है? 1 स्क्वायर माइनस 1 by N2 क्या है हमारा? 2 स्क्वायर. ओके, एंड
and accordingly you just calculate the answer. पहले हम 1 by lambda की वैल्यू निकाल देते हैं, RH 2 and it will be 2 minus 1, 1 by 2, no, sorry students, it will be 4 minus 1, 3 by 4, ठीक है. अच्छा, वेवलेंथ की वैल्यू निकालनी है तो आप इसको रिवर्स कर दोगे, so it will be 1 by RH and 4 by 3 and 1 by RH की वैल्यू डायरेक्ट लगा सकते हैं यहाँ पे 912 एंगस्ट्रॉम and you can easily calculate. ओके, ये तो बात हुई हमारी, अगर हम बात कर रहे हैं फर्स्ट लाइन के लिए. फॉर द फर्स्ट लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम दैट इज अ लाइन ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, तो N2 की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे बाय N1 प्लस 1. बामर के लिए कैलकुलेट करना है तो उसके लिए N1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 और N2 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3. ओके, नाउ फर्स्ट लाइन की जगह अगर हम लास्ट लाइन की बात करते हैं, लास्ट लाइन ऑफ द स्पेक्ट्रम, तो उसका फॉर्मूला भी लिख लो यहाँ पे. आई जस्ट रब दिस वन. लास्ट लाइन को हम सीरीज लिमिट भी बोलते हैं. लास्ट लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम, और इसको हम बोलते हैं सीरीज लिमिट, ठीक है. और लाइन वहां पे बोलता है लाइन ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, या इट इज अ लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ. ओके, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मींस मैक्सिमम एनर्जी, मोर फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शन होता है एनर्जी के. ओके, अच्छा, अब अगर हम इसके N1 की वैल्यू निकालें, देखो सीरीज लिमिट है तो इसमें ऑलवेज N2 क्या होगा आपका बेटा, इनफाइनाइट. N2 will always be infinite. सपोज मुझे लाइनमैन के लिए सीरीज लिमिट निकालनी है, या मुझे निकालना है लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, फर्स्ट लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालनी है, तो लाइनमैन के लिए मैं क्या रखूंगी, N1 वही रहेगा 1 और N2 क्या हो जाएगा बच्चों, इनफाइनाइट. ओके, सीरीज लिमिट मुझे निकालनी है, लास्ट लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम निकालनी है, सो आई विल बी पुटिंग N2 is equals to infinite, so 1 by lambda is equals to RH. अगर हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं Z will be 1 and N1 की वैल्यू है 1 minus 1 upon alpha square. Okay, so it will be 0 and what will come out, RH upon 1. So wavelength will be 1 upon RH. Wavelength क्या हो जाएगा 1 upon RH. That means 912 angstrom. Okay, similarly बामर के लिए कैलकुलेट कर लो. Now we are going to do some numericals based on these concepts. Okay, so let's start with some of the questions. I had written 5 questions over here and we will use the 3 formulas which we had discussed in the previous slide. First, about the series, their N1 and N2 values. Second, total number of lines and the Rydberg formula. And one more of course, that is the first line and the last line. Last line को limiting line भी हम बोलते हैं, series limit भी हम बोलते हैं. Okay, अब हम देख लेते हैं 5 questions कैसे उनको apply करना है. An electron jumps from fourth excited state to ground state. स्टूडेंट, सबसे पहला काम है आपको N1 और N2 की वैल्यूज को निकालना. सो हियर इट इज रिटन फ्रॉम फोर्थ एक्साइटेड स्टेट. इसने N1 की और N2 की कोई वैल्यू नहीं दी है. देखो, ग्राउंड स्टेट मींस N1 हमारा क्या है 1, फाइन, बट एक्साइटेड स्टेट हमारी है फोर्थ. अब फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, देखो स्टूडेंट्स, अगर 1 से वो सेकंड में जा रहा है, अगर फर्स्ट शेल से सेकंड शेल में जा रहा है, so this is our first excited state. ओके, अच्छा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट अगर सेकंड शेल है तो हमारी फोर्थ एक्साइटेड स्टेट कितनी हो जाएगी. अगर हम फोर्थ एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहे हैं तो वो हमारी कितनी हो जाएगी, 1 से आगे 2 है तो 4 से आगे 5, isn't it? अगर हम बात कर रहे हैं एन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, दैट मींस वो कौन सी स्टेट में प्रेजेंट है, N2 की वैल्यू हमारी वहां पे क्या है 5 और N1 की वैल्यू हमारी क्या है 1. ओके, नाउ अब हमने N1 और N2 की वैल्यूज को रिकॉग्नाइज कर लिया. अब आगे देखते हैं व्हाट इट इज आस्किंग. देन फाइंड टोटल नंबर ऑफ लाइंस. टोटल नंबर ऑफ लाइंस के लिए हमने एक फॉर्मूला लिखा था, दैट वाज टोटल lines del n. The formula was del n bracket del n plus 1 upon 2. अब आपने N1 N2 की वैल्यूज फाइंड आउट कर लिए. दैट इज वेरी इजी. 5 से आ रहा है 1 में, ठीक है. del n की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 4.
अब हम इसको फॉर्मूले में डाल देते हैं. 4 plus 1 5, so it will be 10. 20 upon 2 10. Total number of lines will be 10. Okay, हमारा हाफ क्वेश्चन हो गया. Then find the total lines we had calculated, it is 10. Now individual lines in each series. अब हर सीरीज की हमें निकालनी है. देखो बेटा, अगर n = 5 है तो n = 5 में से वो 4 में आ सकता है, 3 में आ सकता है, 2 में आ सकता है, 1 में आ सकता है. ठीक है, अगर हम स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से, अगर वो लाइमन में आ रहा है, लाइमन में आ रहा है यहाँ पे 5, अगर हमारी सीरीज है तो n 5 में से वो कहाँ पे आ रहा है, 1 के अंदर पहले. तो लाइमन के अंदर हम कॉन्स्टिट्यूट करेंगे सीरीज, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैंने वो फॉर्मूले में लिखा था n2 - 1. सो n2 हमारा क्या है 5, n2 - 1 फॉर्मूले में डालो बेटा. 5 - 1 इट विल बी 4. तो लाइमन में कितनी सीरीज आएंगी, 4. ठीक है, इसी तरह से हम बामर की निकाल लेते हैं. n2 - 1, तो n2 हमारा यहाँ पे क्या है 5. 5 - 2 था फॉर्मूले में, सो इट विल बी 3. ओके, अच्छा थर्ड वाला हमारा पैशन, यानी फिफ्थ शेल से वो फर्स्ट में भी आ सकता है, वो सेकंड में भी आ सकता है. पैशन इज कॉन्स्टिट्यूइंग थर्ड, सो इट विल बी 5 - 3 इट विल बी 2. ओके, और जो लास्ट वन वाला हमारा आएगा लाइमन, बामर, पैशन, ब्रैकेट. ब्रैकेट समझ में आया मैं क्यों ले रही हूँ, बिकॉज ब्रैकेट में कौन सी सीरीज में आएगा, फोर्थ, यानी फिफ्थ से पॉसिबल है वो फोर्थ में भी आ जाए. तो हम क्या लिखेंगे 5 - 4, so it will be equals to 1. अब देखो टोटल हम देख लेते हैं. 4 + 3 7, 7 + 2 9 and 9 + 1 10. यानी ये हमारी डिफरेंट सीरीज होगी और टोटल हमारा क्या आ गया, नंबर ऑफ लाइंस 10. 10 में से 4 तो है लाइमन में, 3 है बामर में, 2 है पैशन में एंड 1 है हमारा ब्रैकेट में. ओके, सो यू हैव टू अटेम्प्ट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इन दिस वे. सेकेंड क्वेश्चन, find the ratio of the wavelength of the limiting line of Lyman, Balmer and Paschen. पहले तो हम माइंड में फॉर्मूला कर ले, रिडबर्ग फॉर्मूला. ठीक है, जिससे हम वेवलेंथ कैलकुलेट करेंगे. सेकेंड लाइन हम माइंड में रिकॉल कर ले, लिमिटिंग लाइन. लिमिटिंग लाइन मीन्स हमारा n2 क्या हो जाएगा, इंफिनिटी. ओके, सो लेट्स डू दिस क्वेश्चन. फर्स्ट लाइमन 1 upon λ1. सपोज हम लैम्डा l लिख लेते हैं लाइमन के लिए. ठीक है, RH बिकॉज हाइड्रोजन ही होगा यहाँ पे, तो हम Z = 1 मान के चल रहे हैं. अगर नहीं दे रखा है तो इट इज अंडरस्टूड कि वहां पे हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं. नाउ 1 upon n1. लाइमन के लिए n1 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, लाइमन है तो n1 की वैल्यू 1² माइनस इंफिनिटी रहेगा n2, so it will be alpha². ओके, इसी तरह से बामर, पैशन, तीनों के लिए एक्सप्रेशन लिख देते हैं हम. बामर के लिए क्या हो जाएगा 1 upon λ = RH. 1 upon n1 की वैल्यू बामर के लिए कितनी जाएगी 2, so it will be 2² minus 1 upon infinity². Similarly for पैशन 1 upon λp = RH. पैशन के लिए n1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, यस 3. ठीक है, अच्छा अब हमें कैलकुलेट करना है इनका रेशियो. सो हियर आई एम टेकिंग 1/λl is to 1 upon λb is to 1 upon λp. ठीक है, अच्छा इसको कैलकुलेट करोगे तो व्हाट इट विल कम्स आउट, RH upon 1, RH upon 1² 1. इसको कैलकुलेट करोगे तो RH upon 4, ये वैल्यू तो 0 हो जाएगी, सो इट विल बी RH upon 4. एंड इसकी कैलकुलेट करोगे तो RH upon 9. ठीक है, अब L लैम्डा तीनों का रेशियो निकाल दो, L B एंड लैम्डा ऑफ पैशन. क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा एंड इट विल बी 1:4:9. सो इट विल बी योर आंसर. फाइन. नाउ द थर्ड
question. Find the wavelength of radiation when electron jumps from second excited state to ground state. second excited state से आ रहा है वो ground state के अंदर. तो अगेन हमें वही करना है, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की हम वो निकाल लेते हैं, n2 की वैल्यू क्या है एंड उसके बाद हम उसका वेवलेंथ निकाल लेंगे. लेट्स डू इट. देखो वेवलेंथ निकालनी है हमें. इलेक्ट्रॉन जंप कहाँ से कहाँ कर रहा है, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट. मींस वो कहाँ पे प्रेजेंट है. फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हमारी क्या थी स्टूडेंट्स, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होती थी 2, सेकेंड शेल होती थी. ठीक है, सेकेंड कितनी हो जाएगी, थर्ड. और हमारे यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन जब सेकेंड एक्साइटेड स्टेट. सो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट क्या हो जाएगी 3, यानी n2 की वैल्यू क्या हो गई हमारी 3. ग्राउंड स्टेट है यानी n1 की वैल्यू होगा हमारी 1. ओके, नाउ वेवलेंथ कैलकुलेट करना है. फॉर्मूला लगा दो, रिडबर्ग फॉर्मूला. 1/लैम्डा इज इक्वल्स टू RH. फाइंड वेवलेंथ. हाइड्रोजन दे रखा है, नहीं दे रखा, कुछ नहीं दे रखा, तो हम हाइड्रोजन लेके चलेंगे. RH वैल्यू, हाइड्रोजन की Z की वैल्यू 1 लगा दो. 1/n1. n1 क्या है हमारा 1 स्क्वायर माइनस 1/n2 3 स्क्वायर. ठीक है, याद रखना एमस्ट्रॉन्ग में कैलकुलेट करना है. ये हो गया अपना, इसको कैलकुलेट करो. 1/लैम्डा RH, यहाँ पे ब्रैकेट में आ जाएगा 3 से 9, 9 माइनस 1 8. ठीक है, इसको रिवर्ट कर देते हैं. लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए 1/RH हो जाएगा और ये हो जाएगा 9/8. अब बेटा देखो 1/RH की वैल्यू आई टोल्ड यू 912 एमस्ट्रॉन्ग रख दो अगर एमस्ट्रॉन्ग में आंसर निकालना है, क्योंकि अगर आप इसको 109678 रखोगे तो कैलकुलेशन बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा, है ना. सो इजी वे में करने के लिए आप क्या करोगे, 912 एमस्ट्रॉन्ग डायरेक्टली वैल्यू प्लेस करो. 9/8 आंसर आ जाएगा आपका एमस्ट्रॉन्ग के अंदर. अगर नैनोमीटर में है तो 91.2 रख दो, सीधा सा आंसर आ जाएगा. क्लियर है. चलो नेक्स्ट, फोर्थ वन. फाइंड द रेशियो ऑफ वेवलेंथ in again Armstrong for first and second line for Balmer series of He+. अब यहाँ पे हमें Z कैलकुलेट करना है, मतलब Z को हमें कंसीडर करना. अभी तक Z की वैल्यू 1 थी तो हम यहाँ पे कैलकुलेशन में यहाँ पे 1 ही ले रहे थे. अब हीलियम है तो इसका Z की वैल्यू 2 हमें कंसीडर करना है. ठीक है, चलो. फाइंड द रेशियो फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन फॉर बार्मर सीरीज. पहले फर्स्ट लाइन देख लेंगे. फर्स्ट लाइन हम किसकी बात कर रहे हैं, बार्मर. फर्स्ट लाइन बार्मर सीरीज की हम कैलकुलेट कर रहे हैं. फर्स्ट लाइन, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, He+ की. अच्छा, फर्स्ट लाइन कहां से आएगी स्टूडेंट्स, फॉर्मूला क्या था अपना, N1 प्लस, मैं यहाँ पे फॉर्मूला N2 भी लिख देते हैं. N2 = N1 + 1. ठीक है. अच्छा, बार्मर है तो N1 की वैल्यू तो क्या हो जाएगी 2 और N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी अपनी फर्स्ट लाइन की. अभी हम बात कर रहे हैं पहली लाइन कहाँ से आएगी, तो हम यहाँ बात करेंगे 2 + 1, तो ये हो जाएगा 3. ठीक है, वैल्यूज लगा दो और इसकी वैल्यू निकाल दो वेवलेंथ की. वेवलेंथ हम निकाल देते हैं. 1/λ1 = RH. हीलियम में Z इसका क्या आ जाएगा 2. देखो यहाँ पे तो मेरा सीरीज में रेशियो निकालना तो कैंसिल हो जाएगा, बट अगर किसी क्वेश्चन में वैल्यू निकालनी होगी तो वहाँ पे मैटर करेगा. ठीक है ना, अगर आप यहाँ पे 2 नहीं भी लगाया तो यहाँ पे तो रेशियो निकालना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट जिस क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफिक वैल्यू कैलकुलेट करना है तो वहाँ पे आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा अगर He का तुमने कंसिडर नहीं किया है. अब 1/n1² क्या है अपना 2 का स्क्वायर माइनस N2² क्या है हमारा 3 का स्क्वायर. ठीक है, इसको कैलकुलेट करो. What it will come out to be RH, twice RH and 1/4 minus 1/9. अच्छा, इसको और कैलकुलेट कर लेते हैं हम. twice RH, 9 × 4 ही ले लेते हैं पूरा, 36, 4 × 36. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा वैल्यू क्या जाएगा 9. अगर मैं इसका LCM लेती हूँ तो 4 9 से 36, तो 9 × 1 एंड 9 कितनी बच जाएगा यहाँ पे 4. सो वैल्यू अपनी क्या आ जाएगी twice RH अपॉन 5/36. ठीक है, अब इसकी कैलकुलेट कर लेते हैं हमारी सेकेंड लाइन. सेकेंड लाइन के लिए अपन क्या करेंगे, सेकेंड लाइन अगेन बार्मर की हम बात कर रहे हैं.
ठीक है, फर्स्ट लाइन के लिए हमने क्या लिया था, थर्ड में से वो 2 में आ रहा था, तो सेकेंड लाइन क्या हो जाएगी, 4 में से वो 2 में आएगा, तो n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी अपनी 4। प्लेस कर दो वैल्यू, 1/λ2 इज इक्वल्स टू ट्वाइस RH, अगेन 2 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी ट्वाइस RH और यहाँ पे आ जाएगा अपना 1/4 1/16। ठीक है, इसको हम एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे ट्वाइस RH 4 × 16। ठीक है, 4 16 आ जाएगा यहाँ पे, 16 माइनस 4। ओके, सो व्हाट इट विल बी, ट्वाइस RH और यहाँ पे आ जाएगा 12/4 × 16। ये वैल्यू हमारी आ गई फॉर 1/λ2। अब हमें क्या करना है, व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, रेशियो निकालना है फर्स्ट एंड सेकेंड का। तो हम क्या करें, 2 को डिवाइड कर दे फर्स्ट से, तो अब क्या करोगे आप स्टूडेंट्स, 1/λ2 अपॉन 1/λ1। ठीक है, अब इसको आप करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/λ2 तो नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में और λ1 ऊपर चला जाएगा, सो यू विल गेट द रेशियो ऑफ द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन एंड द सेकेंड लाइन। अच्छा, अभी जो वैल्यू है 1/λ2 की, इस वैल्यू को आप ऊपर रख दो, 2RH और ब्रैकेट में हमारा क्या है, 12/4 × 16। ओके, नाउ λ2 की 1/λ1 की वैल्यू वहां पे है 2RH 5/36। यहाँ अगर हम 9 × 4 ही लिख दें ताकि कैंसिलेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अब आप इसको कैंसिल कर लो एंड यू जस्ट गेट द आंसर। ओके, कैलकुलेशन के बाद जो भी आंसर आया आप इसकी वैल्यू देख लेना और जस्ट राइट इट डाउन। ओके, आई जस्ट टेल यू द आंसर अबाउट दिस कैलकुलेशन, इट विल कम आउट टू बी 27/20। इसको कैलकुलेट कर लेना स्टूडेंट्स, आई गेस यू विल बी गेटिंग द राइट आंसर। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन बामर सीरीज। अगेन हमने बामर सीरीज का ही क्वेश्चन मिल गया हमें। बामर सीरीज के लिए हमें पता है n1 की वैल्यू क्या है हमारी 2। ठीक है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मींस जस्ट ऊपर वाला फर्स्ट लाइन। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की जब भी हम बात करते हैं तो वी आर सेइंग अबाउट द फर्स्ट लाइन। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन बामर सीरीज, बामर n1 is equals to 2। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लिखना है, दैट मीन्स n2 is equals to 3। जस्ट फर्स्ट लाइन, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन बामर सीरीज ऑफ He+1। सो z हमारा क्या है 2 है और नैनोमीटर में लिखना है। अगेन स्टूडेंट्स, जैसे मैंने अभी आपको पहले बोला था, यहाँ पे हमें कैलकुलेट करते टाइम ध्यान रखना है 1/λ is equals to RH और यहाँ पे z की वैल्यू का ध्यान रखना है 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर। यहाँ वैल्यू प्लेस कर दो एंड यू विल गेट द आंसर इजीली। z की वैल्यू 2 डाल दो और RH को जब रिवर्ट करोगे तो 91.2 नैनोमीटर डाल देना वैल्यू, बिकॉज हमें नैनोमीटर के अंदर आंसर देना है। Okay, so in this way students just do the questions and I hope you will not find any difficulty. Thank you.